So guys, again it is 7/7/21. I've just recorded a Bharat Forge trade which I've put up in the LPR section, and now we're going to see how we can actually use the setup. Whether we will be able to use the FIBO setup or not, I am not so sure, but at least आपको मैं एक live example के through. So it is 7/7/21 just for your reference, so that you can go and check the back data. The reason why I use Zerodha charts is because it's good for good user interface. That's the only reason. I don't trade over here, but I use the charts over here. तो पहले इस concept को समझ लेते हैं. First of all, my view at this point of time. This is how I think. The reason why I'm doing this thing. And जैसे trade बनेगा, I'll start recording on the cell phone also. वो next video में डाल देंगे if at all I get a trade. So अभी मैंने दो possibilities में देख रहा हूँ. पहला, first candle is bullish. Fine. Next, first candle actually took a support at previous day close. Overall trend when you look into the daily charts for Bank Nifty is really bullish. ठीक है, तीन चीजें हो गई, बट इट एक्चुअली स्टार्टेड रेजिस्टिंग एट 100. दिस इज हाउ यू हैव टू एड द डेटा पॉइंट्स. अनदर थिंग इज इट ऑल्दो ट्राई टू टेक अ सपोर्ट ओवर हियर, बट यहाँ से वो गिरने की शुरुआत कर रहा है. दिस अ हाई पॉसिबिलिटी इट गोइंग टू कवर दिस एंटायर कैंडल का मूव. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इज, पहला कैंडल बुलिश बना और इसने पूरी तरीके से बुकिंग करी, बट अलग अलग लेवल पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इट ट्राई टू टेक अ सपोर्ट अराउंड दिस. सो एज अ स्कैल्पर आई कुड हैव पिक्ड अप अ ट्रेड, और ये कैंडल जितना बढ़ा गया था आई कुड हैव इजीली बुक्ड, बट सिंस आई वाज बिजी विद भारत फोर्स दैट टाइम आई डिडंट टेक द ट्रेड. अगेन यहाँ पे देखिए इसने एक सपोर्ट लिया था, इसी कैंडल पे जब इधर सपोर्ट ले रहा था वाइल दिस कैंडल वाज फॉर्म्ड, मैं एक स्कैल्प ले सकता था. अगेन दिस आई कुड हैव टेकन. नाउ व्हाट इज, इधर जब सेल जोन पे आया, बिकॉज दिस कैंडल वाज प्योरली बेयरिश एंड इट ऑल्सो ट्राई टू रेजिस्ट, तो यहाँ पे मैं सेल ले सकता था. बट वाइल आई एम एक्चुअली लुकिंग इन टू दिस थिंग, मेरा अब ये है कि there's a high possibility it would take a support around 35,500. क्यों? Although it's not an option session, but by the way इसको option वीडियो में भी डाला जा सकता है वैसे तो, but ठीक है, let's understand कि the first reason is 35,500 पे एक good support है. That's number one. In terms of OI. Second is जिस लेवल पे इसको गिरना चाहिए था उस लेवल पे गिर नहीं रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज कल एक्सपायरी है, आई डू अंडरस्टैंड, सो आई डोंट वांट टू टेक अ विल टेक अ बाइंग ट्रेड ओनली, बाइंग ऑप्शन. मतलब ऑल्दो आइडियली हर कोई आज के दिन पे सेल ही करता है, बट अभी 11 बजे हैं, इट्स 11, वी स्टिल हैव टाइम. सो इन केस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन पुट और कॉल. सो 35,500 टूटा तो आई बाय पुट, 35,600 की तरफ जाएगा तो आई टेक कॉल. माई बायस इज पॉजिटिव, पहले मैं बता दूं मेरा बायस इज पॉजिटिव. I'll play not for more than 10-20 points, so quantities मैं अच्छी रखूँगा. I'll take quantity around 300-400 lots. Some might say कि अरे तुम्हारे पास पैसा है and all those things, but please try to understand. Today is this thing. If I had to sell option, तो मैं जाता max 100 lots से आज के दिन. If I have to buy option, I have to increase the size because accordingly I'll have to push. So what I'll wait is on the cell phone I'm also looking at this option called 35,600 call, which is slight out of the money option. अभी बोलेंगे 35,540 का ये चल रहा है, तो उस पर अपन देखेंगे. Not more than 10,000 quantities. I won't go with that. Wednesday है तो we have to be little careful. And वो भी if I am getting an entry. So मेरे हिसाब से currently it's quoting around 134. I'm not entering. I always wait for the right time. हमेशा सही समय का वेट करो. 10 रुपए ज़्यादा दो लेकिन सही समय का वेट करो. मेरे हिसाब से around 155 इसका एक अच्छा जोन बनेगा. See, as we speak, bias positive and it is trying to take a support over there. But as I said, I'm not picking up right now क्योंकि हो सकता है false breakout or false support हो. You don't know, right? सो मुझे अगर ये 155 150 के आसपास मिल गया तो 165 पे वो करूँगा. अच्छा, आई हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस थिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग. एनीवेज वो लेवल तो आए तब लेंगे अपन. एंड वंस आई पिक अप आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन सेल फोन ऑल्सो. सो वी हैड टेकन अ भारत फोर्स ट्रेड विच गेव अस अराउंड 39,500. आपको LPR सेक्शन पे मिल जाएगा उसका. एंड उस पर ये था, एंड आउट ऑफ ब्रोकरेज टैक्सेस एंड एवरीथिंग, ब्रोकरेज तो लगता नहीं है बट taxes and everything, it will cost 37,000. Kotak के भी इंटरफेस में there are some issues, but anyways, let's see. So guys, see the way it is forming the candle. I'm just waiting कि 35,600 थोड़ा सा अच्छे से प्यार से चले. So if it starts moving, so let's, and then I'll put up this thing, like market order डाल दूंगा मैं उस चीज पे. Let's see.
So the option which I'm seeing is around 148. Okay, I think I should start grabbing it. मैं अगर अभी से भी मार्केट ऑर्डर्स मारना शुरू करूँगा, सो लेट्स सी कहाँ पे ये चीज़ आती है. सो आई हैव स्टार्टेड एंटरिंग माय ऑर्डर्स गाइस. लेट्स सी. 25 100 लॉट्स का आपके पास लिमिट रहता है. एक बार पे आप 100 लॉट से ज़्यादा का नहीं कर सकते. बट आई थिंक आई शुड स्टार्ट गोइंग इन दैट. ओके, सो पैरेलली आई एम एक्चुअली गोइंग इन द नेक्स्ट वीडियो विदाउट वॉइस. यू विल ऑल्सो गेट टू सी एग्जैक्टली क्या किया गया है. तो मैंने पहला ऑर्डर मार दिया है. ओके, अराउंड 150. आई पिरामिड टिल 155. लेट्स सी. 155 तक का मैं पिरामिड करूंगा. एंड so this is trying to form a good bullish candle. One relief is it is trying to form a good bullish candle. रेस्ट तो हमको देखना पड़ेगा भाई किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल. Because tomorrow is an expiry, and when you are before an expiry, if you're planning to buy that too, and always remember, if before expiry you're buying option, even if it is slight out of the money option, you have to make sure that आपके पूरा ट्रेड आप 130 के पहले ओवर कर लो. Otherwise it can be bit risky. So when I'm planning 35,600, I'm not going to hold it for more than 130. In fact, the way liquidities are actually taking place into the market, मैं शायद ज़्यादा भी होल्ड नहीं करूँगा. I'm just waiting for this level. ये लेवल जैसे ही टूटेगा ना तो वो मेरे को एक कंफर्ट दे देगा. 35,580. That is the level I'm actually looking. If that breaks, that is going to. So see, what beautifully it did is हमारे Fibonacci setup को भी it is actually taking a support. ठीक है, 35,500 के लेवल को भी सपोर्ट लिया है एंड ये ऊपर जाने की कोशिश किया है. So that's actually a good thing. एक बार ये यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है. The high for this candle was 35,585. Why I'm parallelly saying is this is something which I see in the brain. ये मेरे दिमाग में चलता रहता. अच्छा इधर से रेजिस्ट किया, इधर ये किया. I don't make it complicated. I just look कहाँ पे रेजिस्ट किया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बेसिस पे I take trade. That's it. I don't get into all those number crunching and all those things. Yes, obviously, I think my brain is trained to read the numbers quite quickly. But let's see. So currently as I speak, मेरे पोजीशन पे 10,000 का लॉस है. बट आई हैव नॉट इंक्रीज्ड. मैं वेट कर रहा हूँ. आई हैव टू पिरामिड टिल 155. एंड व्हाइल आई एम स्पीकिंग इट इज 35,600 पे चल रहा है. ओके, नाउ आई ऑर्डर्ड अनदर और एक forgot to start the recording. Okay, so I've actually started recording this thing. So मैंने ऑर्डर्स पंच कर करके आई डोंट नो कितने लॉट्स ले ले. 9550 क्वांटिटी है एंड ठीक ठाक क्वांटिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है. 152 पे, तो 155 का अपन लेके चलते थे, 152 पे अपन को मिल गया है. एंड बिकॉज एक्सपायरी है तो मैं कुछ ऑर्डर्स सेल पे लगाऊंगा अभी. 382 लॉट्स है गाइस, ज़्यादा नहीं है. इफ़ आई वॉज सिटिंग विथ फ्री माइंड तो मैं इस पे और भी लगाता. तो आई एम पुटिंग माई फर्स्ट सेल एट अराउंड 158. ठीक है, देन अब उधर से ऑब्वियसली पंटर पलटने की कोशिश करेंगे, बट दैट्स फाइन. मैं और अपने 100 क्वांटिटीज़ लगाऊंगा, 100 लॉट्स लगाऊंगा 160 पे. आई नो पंटर्स विल ट्राई टू टर्न इट अप. सो गाइज आई थिंक सो 158 वाला तो एग्जीक्यूट हो गया है. 160 वाला देखें क्या, हाँ वो एग्जीक्यूट हो गया. 160 भी हो गया है. 51,000 का गेन चल रहा है. ठीक है, नाउ आई थिंक सो इसने एक अच्छा मूव दे दिया है, तो आई विल गो विथ 162. Why I'm taking 162